Morning, student. Today I discuss the physical and chemical properties of carboxylic acid. Okay. Question is arises: carboxylic acid is a higher boiling point than aldehydes and aldehyde ketones and alcohol. Explain why. Why carboxylic acid is a higher boiling point than? In carboxylic acid forms a strong intermolecular hydrogen bond, and they form dimer structure in which extensive hydrogen bonds are intermolecular hydrogen bonds are formed. That is why carboxylic acid forms has higher boiling point. Carboxylic acid have higher boiling point. Okay. So is that in carboxylic acid? This is carboxylic acid. They forms dimer. इसके बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये दे फॉर्म डाइमर इन विच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड intermolecular H bonds. Okay. In alcohol forms a strong also forms intermolecular, but in carboxylic they form a strong intermolecular compared to alcohol because they forms dimer structure. Okay. But in case of aldehydes and ketone में क्या होगा? Carbonyl group is present. Carbonyl group they form dipole interaction. They are the weaker bond than intermolecular hydrogen bond. That is why carboxylic acid is a higher boiling point than alcohol and aldehydes and ketone also. Okay. Now come to the next. Carboxylic acid is soluble in water. Carboxylic acid is soluble in water. Carboxylic acid is soluble in water because they form hydrogen bond with water molecules. That is why they are soluble in water. Carboxylic acid is soluble in water because they forms intermolecular hydrogen bond. They forms hydrogen bond with water molecules. They forms hydrogen bond with water molecule. Hydrogen bond, which is hydrogen bond with water molecules. That is why they are soluble in water. Okay. Solubility decreases with increasing the size of alkyl groups. Because molecular mass increases, that is why the solubility decreases. Soluble in water, solubility decreases. Okay. Benzoic acid is less soluble in water because due to presence of benzoic acid is less soluble in water because the benzyl ring is a larger hydrocarbon part. The solubility decreases. Non-polar parts are present. Okay. Now come to the chemical properties of acidic characters of acidic behavior of carboxylic acid. Carboxylic acid. Why carboxylic acid is acid? Because carboxylic acid produces hydrogen ion in water and the carboxylate ion is formed, which is stabilized by resonance. Carboxylic acid वाटर में डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? They produce hydrogen ion and carboxylate ion. The carboxylate ion. Okay. This carboxylate ion, this is called carboxylate ion. This carboxylate ion is stabilized by resonance.
is stabilized by resonance. Stabilized by resonance, resonating structure. This is the hybrid structure. Okay. This carboxylate ion is stabilized by resonance. That is why carboxylic acid is acid. Okay. But in carboxylate ion, according to laws of mass of action, K is equal to concentration of product upon concentration of reactant. Concentration of product O minus H3O plus upon reactant this will be constant. So Ka, this all will be constant. So K is equal to water, H2O. So Ka is called dissociation constant or acidity constant. K is called dissociation constant or acidity constant. Okay. K is called dissociation constant or acidity constant. Okay. 1 minute. K is called dissociation constant. It is called dissociation constant. Dissociation constant. Higher the value of K, stronger will be the acid. Higher the value of Ka, stronger will be the acid. Stronger will be the acid. Will be acid. Okay. अगर K की वैल्यू हाइयर होगा एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग. अब देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट to the carboxylic acid. Factors which affect the acidic character of carboxylic acid. Carboxylic acid. अब देखिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. Acidic character decreases. Presence of electron donating group acidic character decrease करेगा. मिथेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इथेनोइक एसिड से. इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्रोपानोइक एसिड से. प्रोपानोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड. अब मिथेनोइक एसिड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है अल्काइल ग्रुप. इथेनोइक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. अल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. Alkyl groups are the electron donating groups. तो क्या हुआ? Due to plus I effect, कौन सा इफेक्ट लगा? Plus inductive effect. Electron density on the oxygen atom increases. Electron density क्या होगा? Oxygen atom के ऊपर increase करेगा, तो quality of OH bond decrease and release of H plus ion is difficult. So ethanoic acid is less acidic than methanoic acid. Ethanoic acid is less acidic than methanoic acid. प्रोपानोइक एसिड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो
तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अगर सपोज दैट एक कार्बन है, इसमें 3 लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, तो ये सबसे ज्यादा वीक एसिड, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 3 मिथाइल लगा हुआ है, तब प्लस आई इफेक्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम होगा। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो OH बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ OH बॉन्ड जो है डिक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए जो है ये आपको लेस एसिडिक होगा। ओके, और फॉर्मिक एसिड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा ही नहीं, तो ये आपका जो है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इसमें। अब देखिए, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड और आयोडोएसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन क्लोरोएसिटिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग, देन ब्रोमोएसिटिक एसिड which is strong than iodoacidic। ऐसा क्यों हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electronegativity decreases from fluorine to iodine, the minus I effect decreases, so acidic character decreases, okay, acidic character minus I effect depends upon electronegativity। फ्लोरीन is the highest electronegativity, इसलिए फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलता है, माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तब डू नो प्रेजेंस ऑफ माइनस इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप means minus I effect increases, acidic character decreases। Electronegativity decreases from fluorine to iodine, so minus I effect decreases and acidic character decreases। Okay, तो इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं आपको, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स and presence of electron withdrawing substituents। Presence of electron donating substituents, acidic character decreases due to increased plus I effect। Okay, and presence of electron withdrawing substituents, acidic character increases due to minus I effect increases। Okay, presence of electron withdrawing group, acidic character increases। अब देखिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, 3 फ्लोरीन लगा हुआ, ये 3 फ्लोरीन जो हाईएस्ट इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा एसिड। ओके, एंड फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन ट्राइब्रोमोएसिड, ट्राइब्रोमोएसिड। इसलिए ऐसा होगा, फ्लोरीन हाईएस्ट है, 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग एटम्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके सबसे ज्यादा है, the greater the numbers of electronegative elements attached at a substituent, minus I impact is maximum, so acidic character increases। Okay,
अब देखिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। अब यहां पे नाइट्रो लगा, नाइट्रो बेंजोइक, नाइट्रो लगा देंगे NO2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम्स, तो नाइट्रो ग्रुप रहने के कारण क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हो, नाइट्रो बेंजोइक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ओके, The effect of the following group increasing acidity, acidity का जो ऑर्डर होगा, effect of the following group, effect of following groups, following, ये याद रखिएगा, following groups increase acidic order, increases acidic order, एसिडिक ऑर्डर को इंक्रीज करेगा। देख लीजिए आपका पीएच फॉर फिनाइल, उसके बाद आयोडीन, फिर ब्रोमो, देन क्लोरो, देन फ्लोरो, फ्लोरो लगा सब्स्टिट्यूएंट, देन साइनो, साइनाइड लगा, देन NO2 लगा रहेगा, और सबसे ज्यादा 3 फ्लोरीन CF3 ये लगा। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखेगा, फिनाइल, देन आयोडो, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, देन फ्लोरो, देन साइनो, देन नाइट्रो ग्रुप, और सबसे हाईएस्ट होगा 3 फ्लोरीन लगा होगा एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ड्यू टू माइनस आई। ओके, देखिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग फॉर्म इन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। Predict the product formed by cyclohexane कार्बोल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड क्या स्ट्रक्चर होगा, इस पे CHO लगा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड होगी। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अब इसको हम रिएक्ट करना है, पहला रिएक्शन किससे करना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन हाइड्रोलिसिस, देन H3O+। क्या होगा, अब इसको हमको रिएक्शन करना है, कार्बोल्डिहाइड हो गया ये, इसमें बेंजीन नहीं होगा, कार्बोल्डिहाइड हो गया ये। अब इसको रखना है, हमको करना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिरगिनाडी। अब क्या होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये यहां से लगेगा, ऑक्सीजन के साथ MgBr चला जाएगा, CH हो जाएगा, फिर OMgBr, नीचे बेंजीन लगेगा। ओके, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O+, MgOHBr निकल जाएगा, और यहाँ पे OH होगा। टॉलेंस रिएजेंट, आप टॉलेंस रिएजेंट तो जानते हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो अल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ हीट करेंगे, सिल्वर मिरर बन जाएगा, यानी सिल्वर जो है सिल्वर का चमकता हुआ मिरर बन जाएगा। दिस इज पॉजिटिव टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ओनली। ओके, टॉलेंस रिएजेंट से कीजिए इसको,
टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट CHO है, टॉलेंस रिएजेंट Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका OH, इसके साथ हीट करेंगे तो पहले तो ये एसिड बन जाएगा CO- प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस सिल्वर ट्वाइस Ag, ये सिल्वर इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं। दिस इज नॉन एज टॉलेंस रिएजेंट। ओके, इस कॉम्प्लेक्स बनता है टॉलेंस रिएजेंट। सेमी कार्बाजाइट, अब इसको सेमी कार्बाजाइट से करेंगे तो क्या होगा? सेमी कार्बाजाइट क्या होता है? सेमी कार्बाजाइट इज NH2 स्ट्रक्चर, NHCONH2। आपको सेमी कार्बाजाइट वाला बताए हुए हैं। सेमी कार्बाजाइट इसको बोलते हैं कार्बाजाइट। ओके, तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो गया और बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH ओके, सेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव, सेमी कार्बाजोन बन गया। क्या बन गया? सेमी कार्बाजाइट से सेमी कार्बाजोन बन गया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आपको अब बताएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।